हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSE पायस एकेडमी। आज का डेट है 24 जून 2025 एंड दिस साइड योर अपूर्व सर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक्स। सो अगर आपको हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस का ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कीजिए @CSEP_Assam में। So there's a major and big announcement for all the candidates who have given their enforcement inspector examination. So CSEP Academy has started with its IGP, that is इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि 23 जून से स्टार्ट हो गया है और वो चलेगा अप टू 30th जून एवरी डे 12 PM ऑनवर्ड्स की, जहाँ पर आपको 1-to-1 इंडिविजुअल इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आप इंटरव्यू पैनल को फेस करोगे। उसके साथ आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से टॉपिक से अपडेट कर दिया जाएगा और उन सब क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे वो इस गाइडेंस प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। उसके साथ एट लास्ट यू विल बी हैविंग अ 1-to-1 मॉक इंटरव्यू सेशन विद अ पैनल ऑफ एक्सपीरियंस्ड member panelist. Alright students, so I hope this initiative of CSEP will be very helpful for the students who are going to appear for the interview. So please do call us and get more details of it. So let's start our analysis of these 5 topics. The first topic is Ambubachi Mela. So as you know, from the 22nd of June 2025, Ambubachi Mela has started in Kamakhya. So let's discuss a little bit some facts about the Ambubachi Mela. So you can see here the picture where the devotees has gathered in thousands and thousands of people during the occasion of Ambubachi. Every year, this type of crowd we notice in this divine and pious festival in the Nilachal Hills. So what is this Ambubachi Mela? The Ambubachi Mela, it is held annually every year in the Kamakhya temple in Guwahati, Assam, and the culture is rooted in the worship of the mother goddess Kamakhya, and this Ambubachi is associated with the menstrual cycle of the goddess. So it is said that during this phase from 22nd June for 3 days there will be the cosmic menstruation of the mother goddess. तो उस पीरियड को बहुत ही ज़्यादा पायस माना जाता है और वहाँ पर टेम्पल के मेन डोर क्लोज होते हैं। तो उसी ओकेशन में वेरियस डिवोटीज फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कम टू दिस Shaktipeeth, which is one of the Shaktipeethas of the India, of goddess Sati, which is believed that the genital part of goddess Sati fell in the Nilachal hilltop. Okay, so you can see here the Kamakhya is revered as a Shaktipeeth, one among the 51 shrine associated with the goddess Sati. Okay, so it is celebrating as the cosmic menstrual cycle, which is a sign of fertility and divine power, and it also challenges the taboo that is centered around menstruation, that जो menstruation है वो कुछ impure सा कुछ thing है, उसको ये जो concept है about Ambubachi, it challenges it. So you can see that Ambubachi, it coincides with the arrival of the southwest monsoon in northeast, which also links the festival to agrarian cycles and earth fertility. See the link, so the beautifully it has been linked कि जब southwest monsoon का आगमन नॉर्थ ईस्ट में होता है, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द एग्रेरियन साइकिल, कि जहाँ पर फसल बोए जाएंगे, फसल बहुत अच्छे होंगे। तो इट ऑल्सो लिंक्ड विद अर्थ्स फर्टिलिटी। सो मॉनसून और अर्थ के फर्टिलिटी को बहुत अच्छी तरह से लिंक किया गया है यहाँ पर। So which echoing the earth worship in ancient civilization. The presence of various sadhus and tantric practitioners further deepens its mystic and esoteric cultural character. एजोटेरिक का मतलब होता है कुछ ऐसा कुछ प्रैक्टिस जो कि बहुत ही कम लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है या फिर वो बहुत ही कम लोग जानते हैं उसको। सो दिस अम्बुबाची मेला इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। Alright, so this is just not from the exam perspective directly, but just to give a respect to the mother goddess, we have discussed this particular topic. So next start with our very important topic, that is women Maoist. तो न्यूज़ क्या है कि according to the data there is a sharp rise of women Maoist that is ongoing, which has been found in the recent cadres killed in anti-insurgency operation in
छत्तीसगढ़ इन 2024। इसका मतलब है कि 2024 में जो एंटी माओइस्ट या फिर एंटी इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन कैरिड आउट किया गया था, उसमें जो माओइस्ट मारे गए हैं उसमें से बहुत ज़्यादा माओइस्ट वुमेन है। सो हु आर द माओइस्ट? माओइस्ट जो है दे आर रेफर्ड टू एज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। वामपंथी उग्रवादी जो है उनको वो कहा जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। फॉलो द माओ जेडोंग आइडियोलॉजी। माओ जेडोंग का जो आइडियोलॉजी था, अगर आपको वो राइट अगर आपको राइटफुली नहीं मिल रहा है तो आप इन द बैरल ऑफ अ गन मार कर भी आप वो राइट ले सकते हो। सो हुज आइडियोलॉजी इज ऑफ आर्म रिबेलियन अगेंस्ट द स्टेट एमिंग टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी थ्रू वायलेंस मीन्स। तो ये माओइस्ट का प्रिवलेंस जो है वो इंडिया के रेड कॉरिडोर में ज़्यादा है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द स्टेट्स फॉल अंडर द रेड कॉरिडोर, जो कि है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना। So these are the 5 states which fall under the red corridor, and also some districts of West Bengal as well. So what is the report about? The report is over 1/3, मतलब 3 भाग में 1 भाग माओइस्ट जो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में वो वुमेन है। ठीक है, तो 2024 में अगर टोटल 217 माओइस्ट मारे गए हैं तो उसमें से 74 वेर वुमेन, एंड आउट इन जून 2025 125 माओइस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड, जिसमें से 82 वेर वुमेन। ठीक है, तो धीरे धीरे जो डेटा है वो ना इंक्रीज़ होते आ रहा है। ऑलराइट, सो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो टारगेट है कि 2026 तक वो माओइज़्म को इंडिया से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है, जहाँ पर राइज हमें देखने को मिल रहा है रेदर डिक्लाइन। इशू को हम थोड़ा सा अगर इन डेप्थ देखते तो एक हम जो कोर इश्यूज़ है, ये जेंडर इशू भी हो गया ना, कि जेंडर वो अभी एक्सट्रीमिज़म में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं फीमेल। तो इन दिस केस अगर हम डेटा को देखते हैं तो इसमें जो रीजंस क्या है या इशू क्या है, जैसे कि कुछ मूवमेंट्स इंडिया में होते आए हैं जहाँ पर गर्ल चाइल्ड का इंडोक्ट्रिनेशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है कोई एक आइडियोलॉजी किसी को सिखाना, किसी के दिमाग में वो भर देना, उसको कहा जाता है इंडोक्ट्रिनेशन। ओके, और उन इंडोक्ट्रिनेशन से वो बाल दस्ताज वो क्रिएट करते हैं। बाल दस्ताज का मतलब होता है कि चाइल्ड स्क्वाड। दे प्रिपेयर, द माओइस्ट प्रिपेयर अ चाइल्ड स्क्वाड टू फाइट विद द स्टेट। ठीक है, उसके साथ जो रीज़न और भी आइडेंटिफाई हुआ है, इट इज़ द पुअर आदिवासी पेरेंट्स जो कि अपने डॉटर्स के साथ पार्ट हो जाते हैं। तो पार्टिंग विद द डॉटर्स अंडर थ्रेट, मतलब जो पेरेंट्स है वो माओइस्ट के थ्रेट से वो अपने डॉटर से पार्ट हो जाते हैं और वो डॉटर वो माओइस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रीज़न। So another reason to use of women are as a human shield, कि जैसे ये आर्म्ड फोर्सेस हो या फिर पुलिस हो, वो जनरली अचानक पटक से एक वुमेन को वो शूट नहीं करते। सो देयर इज़ सम एथिक्स इन दैट। सो वुमेन को एज अ ह्यूमन शील्ड हिसाब से भी यूज़ किया जा सकता है, कर रहे हैं वो, या फिर फूड सोल्जर्स के हिसाब से, ओके, हु आर नॉट द एम्पावर्ड लीडर्स। तो वो एक है। सो नेक्स्ट और भी कुछ अगर हम रीज़न देखते हैं कि अगर ट्राइबल वल्नरेबिलिटीज़ है, दैट इज़ अ जनरल रीजन, नॉट वेरी वुमेन सेंट्रिक। कि अगर हम एजुकेशन के बारे में देखें, हेल्थ केयर के बारे में देखें, या एम्प्लॉयमेंट देखें, तो वहाँ पर वुमेन बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड है। देयर आर सम रीजन्स विच आर सर्विंग वुमेन टू बिकम माओइस्ट। सो नेक्स्ट सी द न्यूज़ अबाउट द बीज उत्सव। नाउ व्हाट इज़ दिस? जो आर्टिकल है बीज उत्सव एंड इंडिजिनियस सीड्स इन एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। तो आपको ये नाम से तो पता चल गया बीज उत्सव मतलब क्या है, जो सेलिब्रेशन ऑफ इन सीड्स। यहाँ पर जो सीड है वो होगा इंडिजिनियस सीड्स या फिर देसी सीड्स। तो इंडिजिनियस सीड्स क्या है, वो कुछ ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ सीड है जो कि नेचुरली इवॉल्व हुए हैं ओवर सेंचुरीज, एंड वो बहुत ही वेल एडाप्टेड क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो ग्रो हो सकते हैं। वो लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा वेल अडाप्टेड है, वो उनका जो फलद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर और एक टर्म मेंशन है, दैट इज सीड सोवरेनिटी। सीड सोवरेनिटी का मतलब क्या है? इट इज़ द राइट ऑफ फार्मर्स टू ब्रीड एंड एक्सचेंज डाइवर्स ओपन सोर्स सीड्स फ्री फ्रॉम कॉर्पोरेट कंट्रोल। की जो बाहर के कंपनीज़ है, बड़े बड़े कंपनीज़ है, उन कंपनीज़ के सीड्स या फिर उन कंपनीज़ के कंट्रोल के अलावा भी वो ट्रेडिशनल सीड फार्मिंग अपने राइट्स को एक्सरसाइज करके फार्मर्स कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द बीज उत्सव? बीज उत्सव इट सर्व्स एज अ
प्लेटफॉर्म टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट दिस इंडिजिनियस सीड्स। तो ये जो देसी सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है इसको, ठीक है, विच इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इट टेक्स अ कल्चरल प्राइड। तो लेट्स सी ये 2025 में बीज उत्सव कहाँ पर हुआ है। ये हुआ है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहाँ पर 9400 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स थे। तो यहाँ पर 60 से ज़्यादा पंचायत ने पार्टिसिपेट किया है इन एक्टिविटीज़ लाइक बीज संवाद, मतलब देयर विल बी अ डायलॉग शेयरिंग, देयर विल बी अ नेगोशिएशंस, बातचीत होगा अबाउट द इंडिजिनियस सीड्स, बायोडाइवर्सिटी फेयर्स, सीड बॉल मेकिंग। सीड बॉल मेकिंग ये एक ऐसा बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है जो जहाँ पर काउ डंग हो या फिर फर्टिलाइजर से, नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक बॉल और बीच में एक बीज बो दिया जाता है, और उसको अगर आप डायरेक्टली बो दोगे तो वो बहुत ही अच्छे से उसका जर्मिनेशन होगा, और उसका जो स्टोरेज है वो बहुत ही उसका जो क्या बोलते हैं उसको का जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो देयर वाज प्लांटेशन ड्राइव्स। तो बीज उत्सव में फार्मर्स को क्या किया जाता है, उनको अवार्ड्स भी दिया जाता है लाइक बीज मित्र एंड बीज माता। नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेंशन सिस्टम UPS, विच इज creating news in now and then in every newspaper कि UPS NPS उन सबको अभी मर्ज कर दिया जाएगा, कि एक कर दिया जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्योंकि इंडिया में हम क्या देखते हैं, इंडिया में जो पेंशन स्कीम है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो बहुत अलग अलग जगह पर स्टेट्स में हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर एक जगह जो पेंशन स्कीम है वो पॉलिसी हो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर अगर देखते हैं आप कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन स्कीम जो अवेलेबल है, एक है OPS, जहाँ पर डिफाइंड बेनिफिट है कि जहाँ पर गवर्नमेंट विल गिव द रिटायर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट टिल दे आर लिविंग। NPS इट इज़ अ न्यू पेंशन स्कीम जहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करेगा पेंशन कितना होगा, कि एक एम्प्लॉई का भी पेंशन डिटरमाइन करेगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना जो कि 2014-15 में लॉन्च हुआ था, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यही पेंशन स्कीम है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स है फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज़। बट क्या है, ये अलग अलग पेंशन स्कीम होने के वजह से इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन, जैसे कि डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट्स, कि कुछ इंसान वो दो स्कीम के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा मैन पावर लग रहा है क्योंकि हर एक चीज़ स्कैटर्ड है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी देखने को मिलता है। लो कवरेज इन इनफॉर्मल सेक्टर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड पोर्टेबिलिटी इशूज़। So what the government has decided? The government has decided, it has proposed that to unified various pension scheme under a single regulatory, administrative and technological platform, जो कि होगा UPS। जैसे कि NPS को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा with APY and EPFO, and this will merge under a regulatory organization जो कि है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर वो अपना काम करेगा। सो इफ़ यू सी द डिफरेंस बिटवीन UPS एंड NPS, तो उसमें क्या है, डेफिनेशन में देखिए ये डिफरेंस, अ प्रपोज इंटीग्रेटेड पेंशन फ्रेमवर्क दैट यूनिफाइज मल्टीपल एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम इनटू अ सिंगल सिस्टम। ठीक है, हर एक सिंगल पेंशन को वो एक पेंशन हेड के अंदर लाएगा। NPS जो है इट इज़ अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, मतलब जो एम्प्लॉय है वो पेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा, और एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन होगा अंडर द PFRDA, ऑपरेशनल सिंस 2004 फॉर गवर्नमेंट एंड ओपन टू ऑल सिंस 2009। स्टेटस क्या है, ये प्रपोज है और ये ऑपरेशन है, वो अभी काम में लागू है। कवरेज क्या है, यूनिवर्सल कवरेज, सबको कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल। NPS जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी वॉलेंट्री गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो कर दिया गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है वो वॉलेंटरी सब्सक्राइबर है, कि अगर कोई NPS में एनरोल ना करवाए तो भी उनका चलेगा। ओके, सो दीज आर सम डिफरेंस यू कैन सी इन द PDF। ये आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर पेंशन गारंटी अगर देखते हैं आप UPS में इंक्लूड बेसिक और मिनिमम पेंशन गारंटी फॉर द पोर, बट यहाँ पर नो फिक्स रिटर्न और गारंटी, डिपेंड्स ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट दैट यू हैव टू सी। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एशिया क्लाइमेट चेंज। तो ये एक एनालिसिस है, तो ये एक WMO का रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया है कि जो एशिया है ग्लोबल टेम्परेचर राइज से वो दुगना ज़्यादा गर्म हो रहा है।
All right. So according to WMO, the state of climate in Asia 2024, home to nearly 60% of world's population, is warming almost twice as fast of the global average. तो जो global average है उससे ज़्यादा एशिया ज़्यादा डबल गर्म हो रहा है. तो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द WMO रिपोर्ट? तो ये एशिया वार्म्ड बाय 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन 91 to 2020, एवरेज इन 2024. Because of prolonged heat waves in April to November, sea surfaces in Asia warming faster than global ocean average. तो एशिया में जो भी है, अगर वो सरफेस बोलिए या फिर सी बोलिए, वो भी दुगनी तेज़ी से गर्म हो रहा है. एंड इन एशिया 23 out of 24 ग्लेशियर्स इन हिमालयस एंड तियान शान लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मास. मतलब इट इज़ अ कॉज ऑफ इट इज़ अ से ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग. Now, why Asia is more vulnerable? So here, because Asia is very highly dense populated area, people are most exposed to extreme events. ज़्यादा population तो ज़्यादा climatic events. Geographical diversity की एशिया में सबसे ज़्यादा low lying island देखने को मिलता है, हिमालयस है, deserts है, and all are sensitive zones. Socio-economic vulnerability, poor infrastructure, adaptive capacity in many regions. Urban heat island की एशिया में rapid urbanization की वजह से urban heat island एक problem एज अ प्रॉब्लम वो सर्व कर रहा है. मतलब जो कि हीट को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है कि अर्बन एरियाज जो है वो नॉर्मल एरिया से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. दैट इज़ अर्बन हीट आइलैंड. एंड एशिया इज़ मोर, स्पेशली इंडिया इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द मानसून विंड्स. ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई. अगर मानसून कुछ ऑल्टर्ड वे में आए तो वो एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई को, रेनफॉल को इफेक्ट करता है. सो स्टूडेंट्स, वी आर एट द लास्ट of the session. So here are the two MCQs. तो आप इन दोनों का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए. एक है आपका यूपीएस के बारे में और एक है आपका क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन है. So students, your prelims was over and your mains are approaching. Tentatively वो सितंबर में होना चाहिए. So CACPIS Academy is there to guide you in every step of mains. चाहे आप हमारे YouTube में 50 days के क्लासेस देख सकते हैं अबाउट इंटरलिंकेज, चाहे तो आप हमारे एथिक्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे GS5 आसाम पार्ट के बैच को भी अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कम्प्रीहेंसिव एक पैकेज चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके APSC मेंस क्रैश कोर्स को भी ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. दिस साइड अपूर्वा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन. टिल देन, टेक केयर.